event, like second solo release by Vice Special. You guys have always made me what I am today. So I'm really excited. I wanted to keep an event to interact with you guys, to share my experience with you guys. So here I am. आज मैं यहाँ गाना गाने के लिए आई हूँ, शादी का सोच के लिए आई हूँ. So I'm really completely blank tonight. कि शादी का कुछ सोच भी नहीं है मेरे ज़हन में. Your question? So amazing. I hope you guys enjoyed it as much as I did. And now it's some rum. Please enjoy the party. Thank you very much for gracing this occasion. Thank you very much. Thank you, Ms. Malik. Thank you so much. And I'm coming back again to home. Well, it feels amazing when you practically achieve something which you have dreamt of all your life. Since I was a small kid, मैं हमेशा सोचती थी that I'm going to be a very glamorous person, and obviously that included कि मैं कभी स्टेज पर गाना भी गा रही होंगी. Well, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि my love for silver screen has been always greater than my love for singing. So that is why my singing, career and passion always took a back seat. मगर recently I decided कि मैं I will give some time to it, and उसके लिए मैं simultaneously मैं गाना भी साथ साथ जारी रखूँगी. So दूसरा जो solo है मेरा rum, that is out now. I'm happy, I'm excited. That is something I dreamt of, and well, yes, I would definitely like to talk about my my designer, my stylist today, Sonia Mehra, and Lekha Gupta is the makeup artist and my stylist. But Sonia Mehra, I would say, that is the person who's behind the entire look. जो कि पहला black dress मैंने पहना, that was kind of very international. At the same time, there was this Indian touch in it, so it was a kind of a fusion, and it gave me a lot of liberty कि उसके साथ में पल्लू के साथ खेल भी पाऊँ and all that. And while I was singing, I was just playing with that kind of a like a scarf or a dupatta, and yet it was classy, sexy, at the same time it was cute. So I think I really like the vision of Sonia Mehra. She's a great stylist, और उन्होंने ही मेरे दोनों looks decide किए थे आज के लिए. I'm happy that you guys liked it. ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान साहब के साथ काम करना, because they are the face of Bollywood. लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं कोई ऐसा रोल नहीं करना चाहूँगी जिसमें मुझे सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के रूप में आना हो और 2 गाने और 4 scenes करने हो. Obviously, I would like to do something which is substantial, which has something in it as an actor that I can explore, that I can experience, that I can show that onto the screen, and I can represent some of the women's journey. It could be from any walk of life. So the thing is that yes, I do have a great desire to work with all the Khans, मगर ज़ाहिरी बात है खान्स के साथ पीछे खड़े होके मुझे सिर्फ एक ब्यूटीफुल मैनिक्विन का रोल करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होगी. वेल, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान से बहुत सारे सिंगर्स आए हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में अपने आप को मनवाया भी है. हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर उन्हें अपने आप को पेश करने का मौका मिला. मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में आई तो एज एन एक्टर ही थी, और ये आई थिंक इट विल बी ऑब्वियसली समथिंग वेरी ग्रेट कि अगर हिंदुस्तान के लोग एज अ सिंगर भी मुझे पसंद करते हैं तो ज़ाहिरी बात है इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. एंड आई थिंक सिंगिंग इज़ समथिंग which is something very natural. I always wanted to do it. So if people like my tracks, I understand कि शुरू में मैंने कोई इतना ही फ़िलॉसफी बताने की कोशिश नहीं की है गानों में. मैंने गानों को बहुत यूथफुल, सिंपल और एकदम पार्टी टाइप रखा है. अभी मैंने गानों में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कोई पैगाम देने की कोशिश की है, या मैंने कोई फ़िलॉसफी दिखाने की कोशिश की है, या मैंने कोई ज़िंदगी का बहुत ही बहुत ही बड़ी फ़िलॉसफी को अनफोल्ड कर दिया. ऐसा नहीं है. अभी आगाज़ जो है बहुत हल्का फुल्का है. सो येस, आने वाले दिनों में आई वुड लाइक टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, और आने वाले दिनों में मैं और गहराई में भी जाना चाहूँगी म्यूज़िक की. अभी तो आगाज़ है मोहब्बत.
मुझे ज़ाती तौर पर पुराने गानों को नई तरह से पेश करने का बहुत दिल है, और मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के चंद एक बहुत पुराने ट्रैक्स हैं जो शायद हिंदुस्तान में आज तक कभी एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं, और हिंदुस्तान में उनके ऊपर कभी काम भी नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में भी उनके ऊपर कभी भी उनको नए तरीके से पेश नहीं किया गया है, रीमिक्स नहीं किया गया है. सो आई वुड लव टू वर्क ऑन अ फ्यू ट्रैक्स पास्ट में से, मगर इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट न्यू म्यूज़िक, लाइक जो यूथ का म्यूज़िक है, जो नया म्यूज़िक है, जो बहुत ही मॉडर्न भी है, उसमें इंडियन टच भी. जिस तरह रम एक ऐसा गाना है जिसमें आप देखेंगे इट्स वेरी मच बॉलीवुड काइंड ऑफ अ गाना एंड इट्स वेरी मच मस्ती काइंड ऑफ अ सॉन्ग. मगर आने वाले दिनों में यस आई थिंक कि जैज़, पॉप, हिप हॉप और मैं क्लासिकल को भी किसी हद तक लेकर रहूँ अपने उसको मैं गाऊँ, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव टू डू जस्टिस विद एवरी सिंगल ट्रैक. Yes, I do, intend to experiment a lot when it comes to the music in future. See, the thing is that already I'm a global personality. I won't say that I'm just I have collaborated with Dutch guys recently. I've collaborated with a Finnish artist. I've collaborated with Dutch people. I'm working in London when it comes to fashion and all that. मगर international जाने की obviously कौन शख्स जो है वो आज global नहीं जाना चाहता. I already have that little bit of recognition as a global personality. मगर इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मुस्तकबिल में I would like to explore, I would like to take up challenges. It's just the beginning. I will definitely love to experiment and explore. Well, मुझे पता था कि आप लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि रम के बारे में इतनी हमने बात की है. असल में ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका तजुर्बा भी हो. आप दूसरों के तजुर्बे से भी फ़ायदा उठा सकते हैं. मेरे बहुत सारे आसपास जो लोग हैं वो रम पीने के बाद क्या महसूस करते हैं, उनके जब मैंने जज्बात देखे तो मैंने सोचा कि रम के ऊपर एक गाना बनना चाहिए. बट ख़ुद रम को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि पीकर चढ़ती है तो वाकई शायराना दिल हो जाता है. मगर मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि जब चढ़ती है रम तो काफ़ी शायराना हो जाता है मूड. वेल नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी समथिंग अगेन. अभी आने वाले चंद एक ट्रैक्स जो मैं हैं उनको बहुत यूथफुल, ब्राइट और फन रखना चाहूँगी. 2 ट्रैक्स और हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं. एक है तेरी अखियाँ कमाल, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ पंजाबी हिंदी बॉलीवुड मिक्स, और एक है बैड बॉयज़. ये दोनों गाने जो हैं इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और बहुत जल्द इनके वीडियोस बनेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू.